صلى محمد آل محمد صلى محمد آل محمد عزت مآب لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کے CEC صاحب، چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر منور حسین وزیر صاحب، وائس پریزیڈنٹ انجمن آغا ضیاء الدین صاحب، جنرل سیکریٹری انجمن حجت الاسلام والمسلمین شیخ ابراہیم خلیلی صاحب، ہمارے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر کاشف اسکندر صاحب، باقی علماء کرام، سادات اعظام، میرے ساتھی ڈاکٹرز، الرضا ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ فاؤنڈیشن کے باقی والنٹیئرز، رضاکاران، باقی آئے ہوئے یہاں پہ تشریف رکھے ہوئے بزرگ شخصیات اور دیگر حضرات، السلام علیکم۔ آپ سب لوگوں کو بخوبی معلوم ہے کہ آج ایک مختصر سے تقریب کا ایک فنکشن کا انعقاد الرضا ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ فاؤنڈیشن کی طرف سے اس اسلامیہ اسکول کے احاطے میں منعقد کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد ہمارے CEC صاحب نے ہمیں یعنی الرضا ہیلتھ کیئر ریسرچ فاؤنڈیشن کو ایک ایمبولینس عطیے کے طور پہ دینے کا انہوں نے فیصلہ کیا تھا، تو ہم نے سوچا کہ اس کو ایک مختصر تقریب کی وجہ سے یا ان کا نذرانہ جو ہم یہاں پہ ان کا ریسیو کریں، اور باقی جو الرضا ہیلتھ کیئر ریسرچ فاؤنڈیشن کی طرف سے اس کووڈ پینڈیمک کے مد نظر کچھ آکسیجن کنسنٹریٹرز یہاں پہ لوگوں کو وقف کرنے کے سلسلے میں آج کا ایک فنکشن جو یہاں پہ انعقاد کیا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے اس فنکشن کو شروع کرتے ہوئے میں حجت الاسلام والمسلمین شیخ ابراہیم خلیلی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ڈائس پہ آ کے تلاوت قرآن پاک سے اس مجلس کا آغاز کریں۔ شیخ ابراہیم خلیلی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اب میں ہمارے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر محمد عباس
کنسلٹنٹ سرجن سے گزارش کروں گا کہ وہ ڈائس پہ آ کے ویلکم اسپیچ دیں ڈاکٹر عباس. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس سال کووڈ پینڈیمک کی وجہ سے پورے دیش میں مہاماری اس بیماری کی وجہ سے پورا دیش متاثرات ہوا. اس میں ہمارے کرگل کے لوگ بھی اس میں متاثرات ہوئے اس سے. تو اس موقع پر ہمارے مہمانوں کو تکلیف دینے کا مقصد ہے, آپ لوگوں کو تکلیف دینے کا یہاں پہ آنے کا مقصد ہے کہ ہم جو پوسٹ کووڈ پیشنٹس ہیں ہمارے, جو کورونا کے بعد انفیکشن ہونے کے بعد پوسٹ کووڈ ایلیمنٹس ہے, اس کی وجہ سے بہت سارے پیشنٹس لائف لانگ جو آکسیجن ڈپینڈنٹ ہو چکے ہیں, اور ساتھ میں جو سردی کا موسم یہاں پہ ہے, اور ویسے بھی ہمارے سی او پی ڈی پیشنٹس کو بھی آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے. ساتھ میں اس سال کورونا کی وجہ سے جو پوسٹ کووڈ ایلیمنٹ کی وجہ سے جو آکسیجن ڈپینڈنٹ پیشنٹس بہت سارے بڑھ گئے ہیں. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ایسے پیشنٹس کو آکسیجن کی بہت ضرورت ہے, جس کے لیے ہمارے ایڈمنسٹریشن نے, ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, ہمارے چیف میڈیکل آفیسر, ان سب نے کوئی کمی نہیں رکھا ہے اس چیز میں. ہر چیز کا ہمیں سہولیت فیسلٹیز یہاں پہ اویلیبل کیا ہے ونٹر کے لیے. مگر پھر بھی ہماری ایڈمنسٹریشن ایسے پیشنٹس کو جن کو لائف لانگ آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے, ان کو ہاسپٹل میں زیادہ دیر کے لیے ہم ہاسپٹل میں ہم ان کو ایڈمٹ نہیں رکھ سکتے ہیں. 15 دن 20 دن 1 مہینے سے زیادہ ایڈمٹ نہیں رکھ سکتے ہیں. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے سوچا کہ اس سال ہمارے جو گھروں میں جو ایسے پیشنٹس ہیں ان کو آکسیجن کنسنٹریٹرس اور نیبولائزرس جو مشین ہے ان کو گھر میں مہیا کی جائے. تو مہمانوں کا ہم باضابطہ استقبال کریں. ہمارے وردی ڈپٹی کمشنر صاحب کچھ اپنی مصروفیات کی وجہ سے ان کے آنے میں تاخیر ہوئی, تو میں ہمارے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر محمد عباس صاحب گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے مہمانوں کا باضابطہ روایتی خطاب کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے. ڈاکٹر محمد عباس صاحب پلیز. وقت کی تنگی اور سردی کا تقاضا پروگرام کو بہت ہی مختصر کرتے ہوئے میں اب ڈاکٹر مرتضی علی جنرل فزیشین کنسلٹنٹ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کابل سے ملتمس ہوں کہ وہ ڈائس پہ آ کے الرضا ہیلتھ کیئر ریسرچ فاؤنڈیشن کے اغراض مقاصد کے بارے میں اور ان کے اچیومنٹس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں. تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے امپلائیز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ کووڈ-19 جیسے عالمی مہلک بیماری کے دوران کرگل جیسے پسماندہ علاقے میں قلیل الوسائل کے باوجود ایک بے مثال قیادت کا کردار ادا کیا. اس لیے آپ سب لوگ خراج تحسین کے مستحق ہیں. اس کے بعد میں آپ لوگوں کے سامنے الرضا ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ فاؤنڈیشن کی کچھ ایکٹیویٹیز اور مختصر سا
एक्टिविटीज़ का एक मुख्तसर सा खुलासा पेश करूँगा। अलरज़ा हेल्थ केयर एंड रिसर्च फाउंडेशन का इनेकाद साल 2017 में सदर इस्लामिक स्कूल करगिल हुज्जतुल इस्लाम शेख नज़ीर महदी की सरबराही में हुआ। इस तंजीम का मकसद ज़िला के गरीब और पसमानदा मरीज़ों की माली इमदाद करना और महकमा सेहत ज़िला के महकमा सेहत को मज़ीद मुस्तहकम और मजबूत करना है। अपने इस मुख्तसर से अरसे में अलरज़ा हेल्थ केयर एंड रिसर्च फाउंडेशन ने अब तक 15 लाख से ज़ायद रकम ज़रूरतमंद मरीज़ों में तकसीम किया है। इसके अलावा ज़िला के दूर दराज इलाके मसलन इचुपंगबर, परकची, मुश्को जैसे दूर दराज इलाकों में मल्टी स्पेशलिटी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों मरीजों को मुफ्त अद्वियात टेस्ट मुहैया की गई। इसके अलावा ज़िला हेडक्वार्टर के सदर हॉस्पिटल को मुख्तलिफ आलात और सामान फराहम किया गया, जिसमें सरफरीज, एवीजी मशीन, एयर मेट्रेसेस, ओटी ऑपरेशन थिएटर ड्रेसेस वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा ज़िला हेडक्वार्टर में अब तक मल्टी स्पेशलिटी कैंप्स का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के सुपर स्पेशलिस्ट मसलन गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन्स, आई स्पेशलिस्ट का खिदमत दिया गया और बहुत सारी सर्जरीज और मुफ्त अद्वियात ज़रूरतमंद मरीजों में तकसीम किया गया। इसके अलावा इस साल एक मेगा नी रिप्लेसमेंट के कैंप का इनेकाद होने वाला था, जिसमें बाहर से इंटरनेशनल स्पेशलिस्ट भी आने वाले थे। बदकिस्मती से कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से इसे हमें पोस्टपोन करना पड़ा। आइंदा आने वाले साल में इंशाल्लाह इसका इनेकाद किया। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं हमारे रेस्पेक्टेड चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मुनव्वर हुसैन वजीर से गुजारिश करता हूँ कि सर आप डाइस पे आके इस फंक्शन के बारे में मुख्तसर सी तकरीर से लोगों को अवगत करें। तो शायद ऐसी तकरीर में मैं पहली बार शिरकत कर रहा हूँ। हमें बहुत खुशी है कि आप लोगों ने जो ब्रोशर हमें दिया उस हिसाब से हमें लगता है कि आप लोगों ने अवाम नास के लिए हेल्थ केयर रिलेटेड बहुत सारे काम किया है। तो इंशाअल्लाह रहमान हम उम्मीद रखते हैं कि आप लोग ये कार्य खैर आगे भी जारी रखेंगे। बाकी यहाँ पे मेरे से भी मौजूद सामीन गेस्ट बैठे हुए हैं, तो मैं इनका वक्त ना लेते हुए मैं यही दुआ को अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि आप लोग दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें। शुक्रिया, थैंक यू। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। अब मैं हमारे मेहमान अजीज डिप्टी कमिश्नर जनाब बसीरुल हक चौधरी से गुजारिश करता हूँ कि सर आप डाइस पे आके अपना कीमती वक्त में से वक्त थोड़ा सा निकाल के हमारे लोगों को आज के इस मौके के बारे में अपने ज़रूर। मैं समझता हूँ कि ये करगिल की बड़ी खुशकिस्मती है कि यहाँ पे जो मजहबी इदारे हैं वो किस तरीके से हेल्थ के इश्यूज़ को जो है वो एड्रेस करते हैं, और एक बहुत ही अच्छा माहौल जो है वो करगिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी मजहबी तंजीमें हैं वो किस तरीके से लोगों को जो खिदमत है उनको अंजाम दें। और इसका सबसे अच्छा सेहरा जो है वो हमें मिलता है कि हेल्थ में जो कंट्रीब्यूशन करगिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो मजहबी तंजीमों की है वो काबिल सताइश है और काबिल मुबारकबाद भी है। इन्हीं सब तंजीमों में ISK जो है वो एक बड़ी तंजीम है जो अपने खिदमात को जो है वो मुख्तलिफ औकात के हिसाब से पेश करती है। तो
तो मुझे आज इस मौके पे एक बड़ा अच्छा किस्सा याद आता है। तो उस किस्से का जो अनुमान है वो इस तरीके से है कि जैसे अभी डॉक्टर सजाद साहब ने शेर में कहा कि अपने हिस्से का दिया जो है वो जलाना पड़ेगा। किसी को बुरा भला कहने कब तक कहते रहेंगे, अपने हिस्से का दिया जो है वो जलाते रहना है। तो इसी तरीके से एक बड़ा मुख्तसर सा किस्सा है कि किसी जंगल में जो है वो बियाबान जंगल में बहुत आग लगी हुई थी। तो जितनी भी मखलूक वहाँ पे थी, उसमें इंसान भी या दूसरे जानवर भी, परिंदे भी, सब शामिल थे। तो सब उस आग को बुझाने में लगे हुए थे। तो एक जो छोटी सी चिड़िया थी वो भी समुद्र में जाती थी और अपनी चोंच में पानी भर के लाती थी और उस आग के ऊपर वो पानी डालती थी। तो किसी अक्लमंद या दानिशवर आदमी ने पूछा कि आपकी इस चोंच भर पानी से जो है ये आग तो बुझने वाली नहीं है, तो इसका मकसद क्या है? तो उन्होंने कहा कि मुझे अपने हिस्से का काम जो है वो अंजाम देना है, आग बुझे या ना बुझे ये मेरा मकसद है। तो मैं समझता हूँ इसी तरीके से जितने भी यहाँ में मजहबी तंजीमें हैं तो वो अपना रोल और किरदार बहुत खूबसूरती से जो है वो अंजाम दे रही हैं। तो इसी तरीके से ISK जो है वो भी बहुत अच्छे तरीके से खूबसूरती से अपने काम को अंजाम दे रही है। और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो जम्मू कश्मीर था हमारा, उसके अंदर अभी प्रेजेंट जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है, इसके अंदर करगिल ही शायद वाहिद एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे मजहबी तंजीमें जो है वो उनकी हेल्थ जो है वो एक पर्टिकुलर बहुत ही मजबूत और पावरफुल विंग है जो लोगों के कामों को अंजाम देती है, खासकर हेल्थ में। नेक ख्वाहिशात से शुभ की संदेश के साथ उनका खैरबाद कहते हैं। तो अब मैं अपने मेहमान खुसूसी और आपके भी ज़्यादा टाइम हाइल ना होते हुए अपने हफ्तर अजीज CC साहब काशोर उस्मान साहब से गुजारिश करता हूँ कि सर डाइस पे आके अपने ज़मीन ख्याल से नवाजें। काशोर उस्मान CC साहब। वॉलंटियर्स और यहाँ पे तशरीफ फरमा हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बड़ी खुशी है, जैसे अभी DC साहब ने भी फरमाया, कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कारगिल में जितने भी मजहबी इदारे हैं, मजहबी लिहाज से तो ये उन पर फ़र्ज़ है कि जो हमारे मजहबी एक्टिविटीज़ है उनको अंजाम देना। लेकिन पिछले कुछ सालों से हम ये देख रहे हैं कि उनमें भी अब एक एहसास होने लगा है कि हमें जो अभी अपने मजहबी फ़राइज़ हैं उसके अलावा हमें कुछ समाजी फ़राइज़ भी हमारे ऊपर वाजिब हैं। उस चीज़ को महसूस करते हुए, चाहे आप मेडिकल लाइन में देखिए, चाहे आप एजुकेशन लाइन में देखिए, दोनों में बढ़ चढ़ कर अभी हमें मजहबी इदारे जो हैं अपने अवाम के लिए, करगिल के कौम के लिए अपना फ़राइज़ और अपना खदमत जो है अंजाम दे रहे हैं, जिसका अभी यहाँ पे जो आपका हेल्थ विंग जो यहाँ बना है अल-रिज़ा इस्लामिया स्कूल का, साथ साथ हम देख रहे हैं कि हमारा जाफरिया एकेडमी जो मॉडर्न एजुकेशन काफ़ी सालों से अब हायर सेकेंडरी और इतने हमारे बच्चे उसमें ज़ेर तालीम हैं और बहुत सारे उसमें तालीम पढ़ के काफ़ी आगे जा चुके हैं। उसके साथ साथ आप लोगों ने ये भी महसूस किया कि हमें यहाँ पे जो हमारे दूर दूर गरीब बच्चे हैं जो एजुकेशन में बहुत अच्छा करते हैं लेकिन वो एफर्ट नहीं कर सकते हैं, उनके लिए यहाँ पे जवादिया केयर के नाम से एक बोर्डिंग हॉस्टल भी आप लोगों ने शुरू किया और उसका रिजल्ट भी हम देख रहे हैं। आज इसी साल अगर हम देखें तो नीट में हमारे कितने बच्चों ने उसमें क्वालिफाई किया। तो ये सारा जो है हम एक कंट्रीब्यूशन है, लेकिन ये एकदम आपको इमीडिएट रिजल्ट आने वाले नहीं है। जो आज आप इन्वेस्ट करें तो कल आपके पास रिजल्ट है, लेकिन यही चीजें हैं जिससे हमारे जनरेशन में चेंज आता है, जिससे वाकई ये जो है सही इन्वेस्टमेंट है, कौम का खदमत जो यही है, एक ह्यूमन रिसोर्स को आप डेवलप कर रहे हैं। बाकी चीजें आप हम देख रहे हैं, डेवलपमेंटल सड़कें हैं, बिल्डिंग्स हैं, बनते जाएंगे। आप इस साल नहीं बनेंगे, अगले साल बनेंगे, लेकिन आप एक जो ह्यूमन एक रिसोर्स जो डेवलप कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में, यही एक चेंज कर रहे हैं हमारे पूरे जनरेशन को, एक जिसको हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे।
For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.